Hello class, in last lecture we are taken here comparison in between mean, mode and median. Now there is next point, that selection of an average. Now here we study five averages and discuss their merits and demerits. Now given any data, we have choose the proper average to represent them. As a wrong choice that may lead the fallacious conclusions. मीन्स हमें wrong conclusion क्या हो सकता है, मिल सकता है. Now, considering all the characteristics, we may say that arithmetic mean is what better than other averages. Right now, if distribution is fairly symmetric, arithmetic mean, median, mode do not differ much from each other. But if distribution consists one and two items with very big value, then arithmetic mean is not a good representative. In such a cases, mid and median preferred as a what your average. Arithmetic mean cannot be calculated and median is used in certain characteristic like beauty, honesty, incapable of numerical measurement. Here हम क्या करते हैं, in such a cases we use the median. If you want average production, average profit, then arithmetic mean is ideal. When we use here arithmetic mean here in average production, average profit, arithmetic mean. If you want to find the average size of ready-made garment and common wages, we हम क्या use करते हैं, mode को prefer करते हैं, right ना. So all these about the your average. What is the weighted average then? Weighted average, in simple average we give equal importance to all the items. In certain cases all the items are not equally important. In such a cases simple average will not be a fair representative in a data. Then weighted average is calculated, where weights are assigned according to the importance of the item. It is not easy to determine the weight of the different items. क्या रहता है ना कि जब आपका all data नहीं important है, we want to focus on here some important measure, then we use what, weighted average. Okay, यहाँ पे they gives us one examples that to calculate average marks of the students, there may be a 9 students getting 5 marks and only one getting 9 marks out of 10. In this case simple average of the 5 and 9 will not give the correct average. यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये जो इसका ये रहेगा ना, इन दोनों का 5 and 9 का जो एवरेज रहेगा, we will not get the correct average, and the weight are the actual number of the students getting those marks. Some statisticians do not consider this as a weighted average. When the ratio and percentage are being averaged, the weighted average is better than the simple average. आपका weighted average क्या रहेगा, ऐसे जो cases रहते हैं इसमें weighted average is better than the simple average. If we have to find out change in the industrial production, all the industries are not equally important. The changes in the production of a bigger industries will affect the economy in general more than the change in the small industry. Here weighted average gives us a better result. Weights are assigned according to capital invested, gross production, etc. नेक्स्ट इज यहाँ पे वेटेड एवरेज हमें दिया हुआ है. व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज में यहाँ पे इफ़ द वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू x1 x2 xn करस्पॉन्डिंग टू द वेट्स हियर w1 w2 wn attached to them, then the weighted arithmetic mean of x is equals to x bar is equals to w1 x1 w2 x2 plus wn xn divided by w1 plus w2 up to. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी मल्टीप्लाई हियर बाय द वेट. ओके, नाउ वी टेक वन एग्जांपल सो concept will clear to you. There
three candidates A, B, C, D select for the final interview and had the following score in written test, group discussion and final interview. If there is a one post who should be appointment, wait for the written test, group discussion and the interview are 3, 2 and 1 respectively. तो यहाँ पे देखो ये कि क्या है, 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फॉर द फाइनल इंटरव्यू और उसमें भी क्या है 3 टेस्ट है, वन आपका रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू. एंड वेट दे असाइन दैट रिटर्न टेस्ट 3, ग्रुप डिस्कशन 1 एंड 2 एंड इंटरव्यू 1. Now we want to calculate here weighted average. For this we here consider this table, assign the weights and calculate here WA, WB and WC. Okay, as we calculate we are not taking this summation, we are taking all this summation, WA का summation, WB का summation, WC का summation. What is the weighted average of A? That WA divided by number of weights. कितना है, 3 + 2 + 1 means 6 is equals to, answer is 70. Weighted average of a B. Here we are considering all the summation of WB and summation of WB divided by this summation of W. This is equals to this. Similarly we do for here C. What they ask us that the if देयर इज़ वन पोस्ट हु शुड बी अपॉइंटमेंट, देन यहाँ पे किसे हम अपॉइंट करें जिसका वेटेड एवरेज ज़्यादा है. यहाँ पे तीनों में से किसका वेटेड एवरेज ज़्यादा है, दैट दिस सी का जो वेटेड एवरेज है ज़्यादा है. सो सी मस्ट बी द यर बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस अपॉइंटमेंट. ओके, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से वेटेड एवरेज के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है. अगेन आई रिपीट, वेटेड एवरेज में क्या है, सेम प्रोसीजर जस्ट लाइक हम वहाँ पे क्या करते, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते. यहाँ पे जस्ट वी मल्टीप्लाई बाय द वेट्स, राइट ना, वेट्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू. द टेबल ऑब्वियसली इज समहाउ डिफरेंट for this weighted average. Arithmetic mean of the weighted average. यहाँ पे आपका क्या आएगा, weighted arithmetic mean is used in finding the death rate. Crude death rate of the local can be calculated. यहाँ पे देखो क्रूड डेथ रेट का क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है आपको. क्रूड डेथ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000. ओके, नाउ here but the population divided into the number of groups according to the age. Death rate per the 1000 of this age group is called as the specific death rate, and the specific death rate can be combined to get the death rate of the locality. Weighted arithmetic mean of the specific death rate taken as the weights of number of people in each age group, and it is called as the crude death rate of the locality. Okay, इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं. वी विल टेक वन एग्जांपल सो कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. हियर दे गिव्स अस इन एग्जांपल्स, दे गिव्स अस हियर देखो एज ग्रुप दिया हुआ, आफ्टर दैट लोकेलिटी है, पॉपुलेशन है, देन यहाँ पे आपका स्पेसिफिक डेथ रेट SPDR मतलब स्पेसिफिक डेथ रेट पर 1000 दिया है, लोकेलिटी ऑफ B दी है, पॉपुलेशन एंड स्पेसिफिक डेथ रेट दिया हुआ है पर 1000, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है. नाउ कैलकुलेट द क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फॉर द लोकेलिटी A एंड B. A एंड B के लिए हमें वो डेथ रेट कैलकुलेट करना है. नाउ एज वी नो नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, वेयर आपका टोटल पॉपुलेशन कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोकेलिटी A के लिए लेंगे तो 400 + 1500 प्लस इन सब का क्या आ जाएगी एडिशन, विच इज़ इक्वल्स टू 700, एंड ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 × 25, ये इंटू दिस 20 × 7, सबका मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन. ये आपका क्या आ जाएगा, क्रूड डेथ रेट ऑफ A हो जाएगा. B के लिए देखो हम क्या करेंगे कि आपका फिर से एडिशन ऑफ ऑल दिस,
ओके। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन उन्होंने दिया है, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रूड डेथ रेट में आपको इस टेबल को इग्नोर करना है। हमने क्या देखा है, लोकेलिटी ए का नंबर ऑफ डेथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 400 इंटू 20, 15 इंटू दिस, इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इन सबकी एडिशन। ओके, वो आ गया 16,000 पर 1000। ओके, देन क्रूड डेथ रेट हम इसका निकाल रहे हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे फिर से कि आपका ये हम यहाँ पे भी निगलेक्ट करेंगे, आपका 800 इंटू 15 प्लस 1500 इंटू 7 प्लस दिस इंटू दिस, और देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सबकी एडिशन कितनी है, 7000 है। तो आपका क्या यहाँ पे लोकेलिटी बी का भी क्रूड डेथ रेट निकाल लिया। मुझे अभी क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, इस सबको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट ऑफ लोकेलिटी ए, तो मैं पॉपुलेशन ये वाले पॉपुलेशन को नहीं करूँगी, इससे और इसे कंसिडर करना है। 250 इंटू 20, 8 इंटू 700, 7 इंटू 1300, देन आपका यहाँ पे 12 इंटू ईयर 1500, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको क्या मिल गया, ये ऊपर का डिवाइडेड बाय दिस समेशन 5000। ओके, तो आपको क्या मिल गया, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट मिल गया। सेम आपको स्टैंडर्डाइज डेथ रेट पॉपुलेशन बी के लिए, वहाँ पे भी हम वही करेंगे, 15 इंटू 250, यहाँ पे 7 इंटू 700, सेम सबका मल्टीप्लिकेशन करो डिवाइडेड बाय 5000, तो आपको इसका डेथ रेट का ये पता चल जाए। इसी वे से हमें क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ये देखो, ये जो है ना, ये खाली एक स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए था, ये क्या था, स्पेसिफिक एक एग्जांपल के लिए था। तो आपको क्या करना है, इसी एग्जांपल के लिए खाली ये वाले फॉर्मूला को थोड़ा याद रखो। फॉर्मूला नहीं भी याद रखा, आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों का, जैसे हम ये आपका दिस इज़ नथिंग बट योर फ्रिक्वेंसी एफ है, और हम क्या करते हैं लास्ट में समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्स का समेशन ले रहे हैं, इतना ही इसमें चेंजेस हैं। ओके, और लास्ट में आंसर में यहाँ पे क्या क्या आ गया, 16,000 पर 16 पर 1000। इसी टाइप से आपको आंसर को लिखना भी है। नेक्स्ट एक देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है, अमंग द टू कैंडिडेट्स रमेश एंड रमन ओनली वन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, देयर मार्क्स इन रिटन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन, वो जैसे हमने पहले लिया था सेम आया है, देखते हैं फिर से, एंड करस्पॉन्डिंग वेट्स विच आर टू शुड बी सिलेक्टेड एंड वाई, विच ऑफ द टू सिलेक्टेड, उनमें दोनों में से कौन आएगा। यहाँ पे उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे रमेश के स्कोर्स है और यहाँ पे रमन का स्कोर है, वेट भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, खाली एक ही आपका WA WB सेम टेबल है जैसे वहाँ पे बना है, इसका समेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आपका वेट्स। ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे किसका स्कोर ज़्यादा है, तो आपका बी का स्कोर, रमेश का स्कोर ज़्यादा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, सेम टाइप्स के एग्जांपल्स भी यहीं पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसमें से एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। देखो, यूज़ ऑफ वेटेड एवरेज मैंने जो आपको दिया था, अब अभी बताया वो वाला, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड वेटेड एवरेज, जो वेटेड एवरेज का टॉपिक है उसी में उन्होंने दिया हुआ है। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं कि प्रेफरेंस वाइज जब डाटा दिया रहता है वो हम वेटेड एवरेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल एवरेज में हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ओके, सेम टाइप्स के क्वेश्चन हैं।
ओके, ये वाले एग्जांपल्स लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द बोनस ऑफ हियर 10 वर्कर्स इन अ कंपनी। यहाँ पे 10 वर्कर्स को कंपनी का बोनस मिला हुआ है, 1000 में है। तो यहाँ पे आप मिड वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करोगे और डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला। यहाँ पे इसे आप और रिड्यूस कर सकते हैं, x माइनस 1300 डिवाइडेड बाय, अभी आपके ऊपर है, आपको एग्जाम्पल में कहीं पे भी ऐसे नहीं दिया है कि आप इसे रिड्यूस करो। आपको कैलसी अलाउड है, यू डोंट वांट टू यूज दिस देन स्किप इट एंड डायरेक्टली ऐड ऑल दिस नंबर। आपके ऊपर है, आपको नहीं ये यूज़ कर रहा है ना ये वाला शॉर्टकट मेथड, डोंट यूज़ इट। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इन सब का समेशन करो, जो भी समेशन आ जाएगी टोटल डिवाइडेड बाय आपका जो नंबर ऑफ ये है 10 है वो करो, आपको आंसर मिलेगा। और दोनों के भी आंसर आपके क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ओके, यहाँ पे फिर से बताती हूँ, ये वाला शॉर्टकट मेथड से क्या हो जाता है ना, कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। दिस मेथड यूज ओनली फॉर द कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता है इसलिए, अदरवाइज यू डोंट वांट टू यूज, डोंट यूज हियर। ओके, डायरेक्टली इसका समेशन ले लो, डिवाइडेड बाय 10 करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द वेजेस ऑफ 70 वर्कर्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड एफ एक्स दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। x दिया है, f दिया हुआ है, हम क्या करेंगे एफ एक्स निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, हमें आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड, फिर से वही है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर उन्होंने दिया है 1000 में दिया हुआ है। ऐसे टाइप्स के एग्जाम्पल में हम पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन क्या करेंगे एफ एक्स निकालेंगे। कंटिन्यूस डाटा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, कंटिन्यूस डाटा है ना, तो कंटिन्यूस डाटा में हम क्या करते हैं कि इसकी मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट ऑल दिस वैल्यू। और फिर क्या करो कि आपका समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे देखो आपको आंसर मिल जाएगा। सेम है, हमने ये सभी टाइप्स के एग्जांपल्स पहले भी बहुत सारे लिए हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय द 400 हियर एम्प्लॉइज ऑन ए फर्म इज गिवन बिलो, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। we want to calculate here income tax, they gives us this income tax, number of employees, then again you don't want to use this here shortcut method, they never here mention here, so you don't want to use, please don't use, डायरेक्टली कैलकुलेशन पर करो। पर क्या हो जाता है, कैलकुलेशन 1000 में बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या करो, x माइनस मिडल वर्ड टर्म कौन सा भी एक ले लो, 550 डिवाइडेड बाय 1000 एंड यू विल गेट द आंसर। आप कौन से भी मेथड से जाओ आपको आंसर हमेशा सेम ही आ जाएगा। ओके, फिर से बताती हूँ, जब हम ये समेशन निकालते हैं ना, समेशन ऑफ एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय ये आपका 400 पॉइंट में मिला, फिर आप क्या करोगे, इसका मैं आपको एक कन्वर्जन बता देती हूँ कि ये वाला हमें क्या करना है, हमने u तो कंसिडर किया, u इज इक्वल्स टू x माइनस 550 डिवाइडेड बाय आपका ये 1000 हो गया। फिर क्या करो कि 1000 इंटू u एंड यहाँ पे प्लस क्या करो आपका 5500 इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपका क्या रहेगा, ऐसे आपको x निकालना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 u जो निकालना है वो प्लस 550 एंड इज इक्वल्स टू योर आंसर। ओके, मीडियन हियर IQ ऑफ गिवन ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें IQs दिया है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर से लेस दैन, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन के लिए हमेशा याद रखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए, राइट ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकाल लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम जो भी आपका यहाँ पे टोटल n आएगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका 1110 है ना, तो हम क्या करेंगे इवन नंबर है इसके लिए डिवाइडेड बाय
2। वही अगर आपका यहाँ पे सपोज 1 1 1 डिवाइड आता तो हम क्या करते +1 डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर रहेगा ना, ऑड नंबर रहेगा तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर रहेगा तो क्या करो n/2। यहाँ पे आपको इस टाइप से उसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड द मीडियन प्रोडक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें मीडियन प्रोडक्शन उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फिर से आपका यहाँ पे लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 240। तो हम क्या करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा है क्या, नहीं, कंटिन्यूस डाटा है। तो कंटिन्यूस डाटा के लिए हम क्या करते हैं कि फिर से आपका यहाँ पे n/2 क्या मेरा 120, 120 से नियरेस्ट बड़ा नंबर कौन है 162। तो आपका ये वाला क्या हो गया, ये जो है वो क्या है आपका भी क्वार्टाइल क्लास हो गया, राइट ना। ये आपका क्या हो गया, आप इसे मीडियन क्लास कह सकते हैं। ये आपका मीडियन क्लास हो गया, राइट ना। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका m इज इक्वल्स टू मीडियन क्लास। तो ये है उसकी, ये है इसकी, ये है आपका सी प्रीसीडिंग क्लास की। आपको फ्रीक्वेंसी यही लेनी रहती है f। ये आपका हो गया L1, ये आपका हो गया L2। सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। फार्मूला याद रखना है L1 + m - c डिवाइडेड बाय f। सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, you will get the answer. Okay, you have to just follow all the rules, so you will get easily all the answers. Similarly, अभी देखो Q1 एंड Q3 है। Q1 एंड Q3 के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला खाली क्या हो जाता है Q1, यहाँ पे Q3। प्रोसीजर भी सेम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी Q1 निकालना है। Q1 है तो मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगी। Q3 है तो क्या करना है हमें, Q3 है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है ना, इंटू 3 करो। प्लीज़ 225 को इंटू 3 करो, यू विल गेट दिस आंसर। फिर Q1 का आपका बाकी सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखो 675 से बड़ा नंबर, सॉरी आपका पहले हम Q1 का देखते हैं। 225 का इमीडिएट बड़ा नंबर कौन सा है, ये। तो आपका फर्स्ट Q1 का कौन सा आ जाएगा क्लास, दिस इज योर क्वार्टाइल क्लास फॉर Q1। ओके, एंड देन हम उसका भी वैल्यूज़ ले लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग, ये आपका C है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F है, यहाँ पे ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। सेम हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसके लिए, यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। अभी Q3 के लिए हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे वैल्यू देखो 675 से बड़ा नंबर कौन सा है 710। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ फॉर Q3। ओके, तो फिर से आपका दिस इज़ योर प्रीसीडिंग वैल्यू C, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। मॉडल का तो आपको पता है, एक बार हम ये देख लेते फिर हम ख़त्म करते हैं। मॉडल का क्या हो जाता है ना, फिर से आपको यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए, इन्होंने एक साथ नीचे देने के बजाय एक साथ दिया है। फिर भी यहाँ पे हम क्या देखते हैं मॉडल में कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। तो ये मेरा क्या हो गया मॉडल क्लास हो गया, राइट ना, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हो गया, ये आपका क्या है F1 है, ये आपका F0, ये आपका क्या हो गया F2, ये आपका L1, ये आपका L2। ये आपका जो फार्मूला है इसमें आप क्या करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ZL1 + F1 - F0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको क्या मिल जाएगा, फिर आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसे आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।